ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ، رات بھر شب رب حبلی کی دعائیں کرے مصطفیٰ، رات بھر رب حبلی کی دعائیں کرے مصطفیٰ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج مبارک پور و گرد و نواح کے مسلمانوں نے الحاج عبدالستار رند صاحب کے نام پر ایصال ثواب کے لیے اتنی کثیر تعداد میں اس عظیم الشان جلسے میں شرکت کیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت منبر نور پہ نویر حضور حافظ ملت، جانشین حضور عزیز ملت حضرت علامہ الحاج نعیم الدین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ ان کے علاوہ دیگر علماء، خطبہ، شعراء کی ایک لمبی فہرست ہے۔ سب کا نام لینا اور تعارف کرانا یہ وقت مجھے اجازت نہیں دے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے تعلق سے صرف اتنا کہہ دینا میں مناسب سمجھوں گا کہ اللہ کے نبی نے ان کے حوالے سے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، ان اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جورہا وحتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ Exactly who lives on the heaven and who lives on the earth, as well as ants from their hole and fish from sea, all of them pray to Allah the Almighty for the pardoning the person who preaches the common man, who teaches the common man۔ یعنی بے شک زمین و آسمان کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ سمندر سے مچھلیاں اور سوراخوں سے چونٹیاں ان حضرات کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی ہیں۔ آج ہندوستان میں خاص طور پہ اور پوری دنیا میں عام طور پہ سب کے نشانے پر ہمارے یہی علماء کرام ہیں۔ دنیا جانتی ہے، سمجھتی ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے علماء کو مٹانا ہوگا، ان کے حوصلے توڑنے پڑیں گے، ان کی ترسگاہ جب تک برباد نہ ہوگی اسلام کا بڑھتا ہوا قدم نہیں رکے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل پاک میں آج اس عظیم الشان تقریب میں جتنی گفتگو آپ نے سماعت کی ہے یا میرے بعد سماعت کریں گے، اس امید کے ساتھ آپ بیٹھے 10-20 منٹ کا وقت دیں کہ مصور رضا کی تقریر اگر 20 منٹ آپ سن لیں، بات سمجھ میں آئے گی تو کچھ اور میں وقت آپ سے لوں گا، سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن 20-25 منٹ کا وقت آپ کو دینا پڑے گا۔ سیرت النبی کے حوالے سے یقیناً آج محفلوں میں گفتگو ہونی چاہیے۔ جس زمانے میں مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے اسلام اور اسلام کے پیغامات بالکل ہٹ چکے ہو، مسلمانوں نے اپنی زندگی جینے کا انداز ایک الگ بنایا ہو، ایسے زمانے میں ضرورت اس بات کی ہو جاتی ہے کہ مسلمان سیرت سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو تباہ نہیں کر سکتی جب تک مسلمانوں کا عمل اس کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی 63 سالہ زندگی کو اگر آپ 2 حصوں میں بانٹ کر مطالعہ کریں، ایک وہ 40 سال کا وقت جب آپ نے کسی کو بتایا نہیں کہ میں نبی ہوں، خود اپنے قریب سے قریب تر رہنے والوں کو آپ نے پتہ تک چلنے نہ دیا کہ میں کیا ہوں اور کیوں آیا ہوں۔ ظاہر ہے اپنی زندگی کے بیشتر اوقات کو میرے مصطفیٰ نے جس حیثیت سے اور جس کام میں آپ نے بتایا ہو، صرف کیا ہو، وہ لمحہ اور وہ کام بڑا امپورٹنٹ رہا ہوگا۔ 23 سال ہی میرے مصطفیٰ صرف اس حیثیت سے آپ تبلیغ فرمائے کہ میں نبی ہوں، مگر 40 سال تک ایک بہتر انسان ہونے کا پیغام میرے مصطفیٰ نے دنیا کو دیا۔ 40 سال میں ہی میرے مصطفیٰ نے لوگوں کو ایک اچھے انسان بننے کی ٹریننگ آپ نے اپنے کردار و عمل سے دی۔ 40 سال کے بعد جب میرے نبی کو اس کا احساس ہوا کہ اب لوگوں کو میں بتا دوں وقت آ گیا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد عرب کے وہ لوگ جن لوگوں نے آپ کو کبھی دنیا کا سب سے بڑا سچا انسان کہا تھا،
दुनिया का सबसे अच्छा और भला इंसान माना था। जैसे ही उन लोगों ने सुना कि मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि मैं नबी हूँ, उन्हीं जबान से जिन लोगों ने कहा था कि आप सबसे अच्छे हैं, उन लोगों ने कहा कि आप सबसे बुरे हैं। उन लोगों ने कहा कि आप सबसे खतरनाक है। नौज़बिल्लाह, किसी ने जादूगर कहा, किसी ने साहिर कहा, किसी ने जालिम व जाबिर कहा। लोगों ने अज़ियतें दी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा बर्दाश्त किए और इस्लाम का पैगाम आप दुनिया तक पहुंचाने का जो अज़्म लिए थे, आप पहुंचाते रहे। मेरे मुस्तफ़ा करीम चाहते तो, क्योंकि अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया था, अपनी उंगली का एक इशारा फरमाते, उस उंगली का जिस उंगली के इशारे से मेरे नबी ने चांद को 2 टुकड़ा फरमाया था, उसी उंगली का एक इशारा मेरे नबी कर देते तो उतबा का कलेजा बाहर आ जाता, शैबा का सीना चाक हो जाता। सहाबा ने कहा कि सरकार, आप पर इतनी मुसीबतें दी जा रही हैं, इतनी शिद्दत के साथ आपके दुश्मन आपके सामने कर रहे हैं, आप इजाजत दें तो मैं इनसे लड़ने को तैयार हूं। मगर मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराते रहे, गालियां खाते रहे, मेरे नबी मुस्कुराते रहे, बुरा भला सुनते रहे। मुस्तफ़ा जानते थे कि जो लोग आज मेरे ऊपर उजड़ियों की बारिश कर रहे हैं, एक दिन आएगा इन्हीं की औलाद में से कुछ लोग होंगे जो मेरे ऊपर दुरूद सलाम की बारिशें करेंगे। मेरे मुस्तफ़ा जानते थे कि जो लोग मेरे ऊपर तलवार ताने हुए हैं, एक दिन आएगा मेरे नाम पर तलवार खाने को तैयार हो जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा जानते थे कि जो लोग आज तहरीक चलाए हैं कुरान पर पाबंदी बैठाने की, नमाज को रोकथाम करने की, मस्जिदें उड़ाने और बंद करने की, एक दिन आएगा मस्जिद इन्हीं से आबाद रहेंगी, कुरान की तिलावत यही लोग करेंगे, मेरे नाम पर सर देने को यही लोग आमादा होंगे। और दुनिया ने देखा 23 साला तबलीगी जिंदगी मुस्तफ़ा में वो इनकलाब दुनिया में आया, लोगों का दिल बदला, दिमाग बदला, सोच बदली, फिक्र बदल गई। दुनिया बिल्कुल हैरत में पड़ गई कि ये क्या हो गया। तारीख़ इंसानियत में इतना बड़ा इनकलाब लाने वाला कोई शख्स हो ही नहीं सकता है, जो महज 23 साल में 1-2 नहीं बल्कि दुनिया की तकरीबन आधी आबादी की शक्ल आपने बदल दी। आपने इनकलाब लाया, उन लोगों के दिलों में माओ की मोहब्बत बिठाया, उन लड़कों के दिलों में जिन लोगों ने अपनी माओ को औकास के मेले में 900 दिरहम में बेचा था। एक वो जमाना जब बेटियों की जिस समाज में इज्जत तक न थी, जिस समाज में माँ को लोग बेचने में फक्र महसूस करते थे, उस जमाने में मेरे मुस्तफ़ा किस तरीके से आपने तबलीग की थी कि उन लोगों ने जो माओ को बेचे, वो लोग अपनी माओ के कदमों के नीचे ही अल्लाह की जन्नत अब तलाश कर रहे हैं। जो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करने में काबिल फख्र काम समझते थे, वो लोग अब अपनी उन्हीं बेटियों को अपने लिए बाइसे खैर बरकत समझने लगे। जिन लोगों ने बीवियों के रहने का इंतजाम अस्तबल में किया था, वो लोग अब अपनी बीवियों से मोहब्बत करते नजर आ रहे हैं। यानी मेरे पैगंबर की जिंदगी में सिर्फ फरमान नहीं है। आज के नेताओं को अगर आप देखें, आज वोट लेना रहता है इसलिए बेटियों को बचाने की बात की जाती है, लोगों का सपोर्ट लेना रहता है, चाहे वो नेता आपके लखनऊ का हो या हमारे दिल्ली का हो। दुनिया में जहां की बात की जाए, हर जगह का नेता ये समझ चुका है, अगर कुर्सी के इस्तेहकाम, अगर उनको चाहिए कुर्सी मजबूत करना हो, तो वो जानते हैं कि कुर्सी तब मेरी मजबूत होगी जब इस्लाम के पैगंबर के फरमान को मैं अपने माइक के जरिए लोगों के बीच रखूंगा। यानी जिन लोगों ने बेटियों को बचाने की बात की है, इन नेताओं में से आप खोज डालिए, इनके घर में दूर दूर तक बेटी का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। किसी के पास माँ है तो माँ गुजरात में, बेटा दिल्ली में, किसी ने शादी नहीं की, किसी ने शादी की तो उनके पास बीवी नहीं, किसी के पास बीवी है तो उनके पास बेटी नहीं। यानी जिनके पास दूर दूर तक ना बीवी हो, ना माँ हो, ना बहन हो, ना बेटी हो, मगर वोट चाहिए, इसलिए वो मन से बोलते हैं बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ। यानी सिर्फ इन लोगों की जबान में हुस्न है, ये जबान को रंगीन करने के लिए, लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए आज मजमे से ऐलान करते हैं कि बेटियां बचनी चाहिए, औरतें बचनी चाहिए, बीवियों के हुकूक मिलने चाहिए। बड़ा अच्छा सुनने को मिलता है। कभी कोई कहता है स्वच्छ भारत का स्वच्छ अभियान, यानी जितने नारे आज हमारे समाज में लग रहे हैं सामाजिक तरक्की के लिहाज से, चाहे वो बेटियों को बचाने की बात हो, चाहे औरतों की इज्जत की बात हो, चाहे बहनों के हुकूक की बात हो, या बीवी से मोहब्बत की बात हो, वालिदैन के एहतराम की बात हो, समाज के स्वच्छ की बात हो, जिस एतबार से सामाजिक तरक्की का आप मुताला करेंगे, हर एतबार से ये बात समझ में आपको आएगी। इन नेताओं की सिर्फ जबान में ये सब जुमले हैं या नैरेटिव है जो स्टेज से बोला जाता है। अमली एतबार से अगर इनकी जिंदगी का मुताला किया जाए, न स्वच्छ
स्वच्छता इनकी जिंदगी में, न अच्छी फिक्र इनकी जिंदगी में, न बेटियों की इज्जत इनकी जिंदगी में। मगर मुस्तफा करीम दुनिया के वो वाहिद इनकलाब बर्पा करने वाले पैगंबर है। मेरे नबी वो वाहिद इंसान है जिन्होंने सिर्फ पैगाम नहीं दिया है बल्कि मेरे मुस्तफा ने अमल करके भी दुनिया को दिखा दिया। मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले स्वच्छता के अभियान का आगाज भी फरमाया और समाज को अमली एतबार से स्वच्छ करके भी मेरे नबी ने दिखा दिया। बेटियों को बचाने की बात 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने फरमाई, अमली एतबार से बेटियों को बचाकर भी मेरे नबी ने दुनिया को दिखा दिया। माओ से मोहब्बत, बीवियों से मोहब्बत की बात भी आपने फरमाई और अमली एतबार से दुनिया को बीवी से, मां से मोहब्बत के आदाब क्या होते हैं ये करके भी आपने दिखा दिया। यानी वो मेरे मुस्तफा है दुनिया के वो बड़े मसीहा जिन्होंने ऐसा कदम उठाया, इस एतबार से दुनिया को हसीन करने की आपने कोशिश की। आज दुनिया का नेता जब लगता है उनको कि हम अपनी आबादी कैसे संभालें, आप जिस राज्य में रहते हैं आपके बगल पड़ोस में क्या बोलते हैं कि बिहार है, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आज से 7-8 साल पहले जब बिहार में बढ़ते क्राइम को उसने देखा, चोरी चपाटी को देखा, गुंडागिर्दी को देखा, उसके बाद वो गुंडागिर्दी को रोकने के लिए उसने सोचा कौन सी तरकीब अपनाई जाए। फौरन उसका दिमाग फैसला किया, ये क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, ये चोरी क्यों बढ़ रही है, ये जुल्म ज्यादती क्यों बढ़ रहे हैं, ये कत्ल क़िताल रुक क्यों नहीं रहा है। अब उसको रोकने के लिए उसने एक तरकीब अपनाई जो पैगंबर इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले अच्छे समाज के लिए आपने निर्माण किया था। उस योजना का आगाज बिहार का मुखिया नीतीश कुमार कर रहा है। नीतीश ने कहा पूर्ण शराबबंदी हो जाए, बिहार में न शराबी देखे जाए, न शराब की भट्टी देखी जाए। यानी ऐसी पाबंदी लाई कि अगर कोई शराब पीता मिल जाएगा 3 साल की सजा, कई हजार जुर्माने उनको देने पड़ेंगे। यानी ऐसा शिद्दत के साथ, इस सख्ती के साथ कानून नाफिज करके बिहार को रंगीन करने की कोशिश की गई। अब बिहार जब तरक्की करने लगा, एक मां पुकार उठी कि मेरे बेटे को नीतीश ने शराब पीने से बचा लिया। बहन पुकार उठी मेरे भाई को नीतीश कुमार ने शराबी बनने से बचा लिया। थैंक यू नीतीश जी। सब लोग शुक्रिया अदा करने लगे। उसकी होड़ में मुसलमान बच्चे, मुसलमान बचिया, मुसलमान बूढ़े सब लोग बोलने लगे नीतीश न होता तो बिहार बर्बाद होता, नीतीश न होता तो बिहार तबाह होता, नीतीश न होता तो कत्ल क़िताल यहाँ आम हो जाते, नीतीश न होता तो खून रेज़ियां आम हो जाती। यानी आज हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी जबान पर नीतीश कुमार की तारीफ के कलमे नजर आ रहे हैं। सब लोग इस तमाम चीज का क्रेडिट उनके ऊपर ढल रहा है कि वाह नीतीश कुमार, वाह नीतीश बाबू, आपने शराबबंदी कर दी। मगर मैं कहना चाहूंगा ये जो नीतीश कुमार शराबबंदी की बात कर रहा है, इन्होंने जो शराबबंदी की है, अगर वाकई शराब की खराबी का सही इल्म इनके ज़हन दिमाग में आज से 7 साल पहले होता तो बिहार का सबसे बड़ा शराबी नीतीश का बेटा ना होता। नीतीश का बेटा सबसे बड़ा शराबी, नीतीश का बेटा सबसे बड़ा गैरी, नीतीश का बेटा सबसे बड़ा भांग पीने वाला। यानी नीतीश अगर शराब की खराबी को सही तरीके से पहले ही भांप लेता तो उसका बच्चा शराबी न होता, उसका भाई शराबी न होता, उसके मंत्री शराबी न होते, उसके समाज के दिगर अफराद जो उसके अंडर पलते और पढ़ते हो वो लोग शराबी न हो पाते। मगर नीतीश का ये जुमला नहीं है। नीतीश ने पैगंबर इस्लाम से मुस्तार लिया है। वो उसको पता चल गया है समाज की तरक्की चाहिए तो इस्लाम के पैगंबर के नैरेटिव को समाज में नाफिज करना पड़ेगा। इस्लाम के पैगंबर ने समाज के सुधार के लिए जिन जिन पैगामात को आम फरमाया था उन तमाम पैगामात पे अमल करके ही दुनिया और समाज को शांत किया जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आज दुनिया का चाहे जो मुल्क हो, हमारा मुल्क हो या हमारे मुल्क से बाहर की बात की जाए, दुनिया का हर नेता ये जान चुका है अगर हमको अपनी कुर्सी बचानी है तो इस्लाम के पैगंबर के कलमे को अपनी जबान पे लाकर लोगों के बीच आना होगा। तब लोग समझेंगे कि बेटियां मुझसे बचेंगी, बीवियां मुझसे बचेंगी। मगर क्या कहा जाए, हम मुसलमान हैं जिनके लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि वो अपने पैगंबर के फरमान को पढ़े, उसके बाद उस पर अमल करे, अमल से दुनिया को अमल की दावत दे। हमारे गैर मुस्लिम भाई को अरबी पढ़ना आती नहीं है, अगर उनमें से कुछ लोग जानते भी हैं तो वो कुरान क्यों पढ़ेंगे, वो हदीस क्यों पढ़ेंगे। अगर वो इस्लाम समझना चाहेंगे तो मेरे और आपकी तरह मुसलमानों को देखकर इस्लाम समझेंगे। वो देखना चाहेंगे कि उनकी सोसाइटी में जो मुसलमान है, जो अकरम भाई है, जो असलम भाई है, जो फिरोज भाई है, फला अंसारी है, फला शेख साहब है, फला सैयद साहब है, उनको देखकर हमारे गैर मुस्लिम भाई इस्लाम समझना चाहेंगे। उनको किताब पढ़ने की फुर्सत नहीं, वो कुरान पढ़कर इस्लाम कभी समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए अब बेहतर यह है मुसलमान कसम खा के बाहर निकले कि हम मुस्तफा करीम के किरदार पे अमल करके दुनिया को अमल की दावत देंगे। मुसलमान कसम खा ले कि हमारी जिंदगी का
एक एक हिस्सा मुस्तफा करीम की सुन्नतों के मुताबिक, उनकी जिंदगी के मुताबिक गुजरेगा। जब हम नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में डालेंगे तब जाकर हम दुनिया को अमल से, दुनिया को इस्लाम की दावत देंगे, वरना वो दिन दूर नहीं है। आज से 100 साल तकरीबन पहले हिंदुस्तान से तकरीबन 7,500 किलोमीटर दूर लंदन की सरजमीन पर एक योजना के तहत लोगों ने सोचा था कि मुसलमान को कैसे बर्बाद किया जाए। हर रोज मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। आज कोई बड़ा प्रोफेसर कलमा पढ़ रहा है, कोई बड़ा इंजीनियर कलमा पढ़ रहा है, कहीं कोई डॉक्टर कलमा पढ़ रहा है। बढ़ती तादाद को देखने के बाद घबराए हुए लोगों ने कहा इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम कैसे रोका जाए, मुसलमानों की तरक्की कैसे रोकी जाए। मुसलमान उरूज पे पहुंच रहे हैं, इनका कदम कैसे रोका जाए, कैसे इनकी खानका बंद हो, कैसे इनके मदारिस बंद हो, कैसे इनके उलमा तरक्की करना बंद करे। तब उन लोगों ने गौर किया, एक रास्ता निकाला कि मुसलमान तब तक तरक्की करते रहेंगे जब तक मुसलमानों का अमल कुरान और हदीस पे होता रहेगा। जब तक मुसलमान अपने उलमा को अपना रहबर समझेंगे तब तक मुसलमान तरक्की करेंगे। यानी दुश्मनों को पता चल चुका है इस्लाम तब तक तरक्की करेगा, इस्लाम की तरक्की तब तक होते रहेगी जब तक मुसलमान अपने रहनुमा, अपने उलमा की इज्जत करते रहेंगे, जब तक कुरान के फरमान पे अमल करेंगे, हदीस मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। दुश्मन ने कहा अब मुसलमानों की तरक्की, इस्लाम की तरक्की कैसे रोकी जाए, कैसे मुसलमानों का बढ़ता हुआ कदम रुक जाए, इस्लाम की बढ़ती तादाद कैसे कंट्रोल की जा सके। चुनांचे इनकी खानकाहों पे हमला हो, उलमा पे हमला हो, मदारिस पे हमला हो, खानकाहों पे हमला हो, उलमा को सताया जाए। उन लोगों ने रास्ता निकाला कि जिस तरीके से भी हो मुसलमान कुरान के अमल से हट जाए, उनकी जिंदगी आजादाना हो जाए। मुसलमानों की बच्चियां हो या बच्चे हो, एक अलग स्टैंड बनाकर अपनी जिंदगी गुजारने में अपने लिए बहादुरी समझे। चुनांचे उन्होंने रास्ता बनाया, हमारे घरों में टीवी का कल्चर दिया, हमारे घरों में मोबाइल का कल्चर दिया, ताकि मुसलमानों की बच्चियां, मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों के बुजुर्गों को ज्यादातर औकात टीवियों में, मोबाइल से लगे रहे, ताकि उनके पास टाइम रहेगा नहीं। वो कैसे कुरान की तिलावत करेंगे, वो कैसे मुस्तफा के फरमान को पढ़ेंगे। जब मुसलमान नबी के फरमान पढ़ेंगे नहीं तो फिर अमल कहां से करेंगे। यानी आज से 100 साल पहले हमारी बर्बादी के लिए, हमारी खानका की बर्बादी के लिए, मदारिस की तबाही के लिए, हमको बर्बाद करने के लिए हमारे दुश्मनों ने जो रास्ता अपनाया था, उन रास्ते पर वो लोग अमल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तहरीक चला दी, उन्होंने योजना बना दिया, मगर हम और आपकी तरह मुसलमान उनके योजना पर धड़ल्ले से अमल किए जा रहे हैं। कौन मुसलमान ऐसा है जिनके औकात ज्यादातर फजलियात में न गुजरते हो, जो लहवियात में न गुजारते हो, जो टीवी और मोबाइल से न लपट हो। मुसलमान का बच्चा जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए मगर एंड्रॉइड सेट है, बाप सेट है, बेटा के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है। अब बाप के पास लूम मशीन बहुत ज्यादा है, बाप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख महीना कमाता है। अब बेटी के हाथ में 50,000 का मोबाइल, बेटे के हाथ में 50,000 का मोबाइल। अब वो मुसलमान जो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है और वक्त से पहले ही बेटे के हाथ में 50,000 का मोबाइल पकड़ा दे, वो मुसलमान सोचेगा मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। वो सिर्फ सोच सकता है, उनकी तमन्ना कभी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अपने बेटे को तबाह करने के लिए एक छोटा सा हथियार 50,000 का पकड़ा दिया है। उनको पता नहीं कि उनका बेटा सिर्फ उनसे बात करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि फेसबुक वो उसी से चलाएगा, व्हाट्सएप वो उसी से चलाएगा। यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इनसे उनके बच्चे उलझे रहेंगे। जब उलझे रहेंगे न उनकी तालीम अच्छी हो पाएगी, न वो तरक्की कर पाएंगे, न वो अपने मजहब को जान पाएंगे, न अपने उलमा को सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। यही आज हो रहा है। मुसलमानों का बच्चा एक अलग जिंदगी के आगोश में आ चुका है। उनको उलमा की ताज़ीम की कोई फिक्र नहीं है, उनको उलमा की मजलिस की कोई फिक्र नहीं है। मदरसे के उलमा, खानकाहों से पीरान, सब लोग चीख कर थक चुके हैं हमें सुधारने के लिए, मगर हम हैं, आप हैं कि मानने को तैयार नहीं है। हम अपनी अलग रंगीन जिंदगी जीना चाहते हैं। मौलाना भोंकते रहे उससे क्या पता, पीर साहब बोलते रहे उनसे क्या फर्क पड़ने वाला। हम तो जिएंगे अपनी जिंदगी। अब नतीजा क्या निकलता है, 8 साल की बच्चियां, नकाब पोछ है मगर 8 साल की बच्चियां, उनके हाथ में एंड्रॉइड सेट है। बाप सऊदीया में रहता है, बाप दुबई में रहता है, बाप ओमान में रह रहा है, बाप दोहा कतर में रहता है। बाप सोचता है मैं वहां से बेटी को फोन करूंगा, बेटी कैसी हो, बेटी बोलेगी अब्बा हुजूर में खैरियत से हो। बाप अपनी बेटी की खैरियत पूछने के लिए, बेटी की खैरियत जानने के लिए अपनी जिन बेटियों के हाथ में मोबाइल पकड़ाया है, उसे पता नहीं वो ट्यूशन पढ़ने जाएगी उसी मोबाइल के साथ, वो स्कूल जाएगी उसी मोबाइल के साथ,
कॉलेज जाएगी उसी मोबाइल के साथ। यानी 8 क्लास 10 क्लास में पढ़ने वाली बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है, वो मोबाइल के इस्तेमाल से वक्त रहते वो 2 4 10 20 फ्रेंड्स पाल लेंगी, उसमें से नन मुस्लिम मुस्लिम कोई भी हो सकता है। अब उन फ्रेंड से चैटिंग में उनका टाइम बीतेगा, वो हमारी बच्चियां कुरान पढ़ेंगी नहीं। यही वजह है आज हर तरह हम समाज में मेहनत कर रहे हैं। आज इतना बड़ा जलसा सजा है, दुआ आखिर में दुआ होगी, दुआ में सब लोग रो रो कर दुआ करेंगे, हमारे नईम मिल्लत साहब दुआ करेंगे, हमारे ये उलमा दुआ करेंगे कि हजरत ये हमारे इस इलाके में बरकत दे दे, या अल्लाह यहाँ के मुसलमानों की कमाई में बरकत दे दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई पीर आ जाए वहां जाकर आप बोलते पीर साहब दुआ कीजिए मेरे लिए, अल्लाह कमाई में बरकत दे दे। सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत के मज़ार अक़दस पे आप जाते हैं, वहां भी लूम में बढ़ोतरी की दुआ मांगते हैं, पैसे की बरकत की दुआ मांगते हैं। यानी दुआएं मुसलमान करते रहते हैं। हाफिज जी हो, मौलाना साहब हो, आलिम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, पीर साहब हो, कोई साहब आ जाए उनकी खैरियत हम बाद में पूछते हैं, पहले अपनी खैरियत के लिए दुआएं करते हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी बरकत साहब से मुलाकात आपकी हुई है क्या? आदमी सिर्फ दुआ करवाता है, पीर आ जाए, पीर का पीर आ जाए, 50,000 पीर हमारे लिए दुआ करे, क्या फर्क पड़ने वाला है? इसलिए आज हमारे उलमा की दुआ हमारे हक में कबूल नहीं होती। गलती हमारे उलमा की नहीं, गलती इनके अमल की नहीं, गलती हमारे अमल से है। हम इतने बदकिरदार हो गए हैं, हमारी बदकिरदारी बदतमीजी की वजह से अल्लाह इन मुक़द्दस उलमा की दुआ भी हमारे हक में कबूल नहीं फरमा रहा है। इसलिए कि औरियात हमारे समाज में आम है। हम अपनी बेटियों को संभालते नहीं, बच्चों को संभालते नहीं। एक बाप जिम्मेदार है, वो बाप अपनी बेटी से पूछे, जवान बेटे से पूछे, 8 बजे रात में तुम घर आ रहे हो, 10 बजे रात में आ रहे हो, तूने 2 घंटे कहां बिताए? यानी यहाँ बाप पूछेगा कैसे? बाप खुद अलग रंगीनी मना रहा है, बाप कोई अलग जिंदगी गुजार रहा है, तो जाहिर है बेटा और बेटी तो अलग जिंदगी में मस्त रहेंगे ही। इसलिए अच्छा समाज ऐसे नहीं बन सकता है। नबी करीम ने किसी जमाने में कहा था, जिस समाज की बच्चों के सर से दुपट्टे हट जाए, उनके बाल में से कुछ भी अगर दूसरों की निगाहों की जीनत बन जाए, तो अल्लाह उस समाज से दुआ की बरकतों को उठा लेता है। वहां अल्लाह दुआ कबूल नहीं फरमाता है, वहां के लोग सर पटक पटक के दुआ करेंगे, दुआएं मरदूद कर दी जाएंगी, चेहरे पे मार दी जाएंगी, क्योंकि उरियानियत हमारे समाज में है, झूठ हमारे समाज में है, फितना और फसाद हमारे समाज में है। हम इसलिए आज दुनिया भर में जलील हो रहे हैं, क्योंकि हमने उलमा का कहना माना नहीं, हमने अपने मुस्तफा की सीरत पे अमल नहीं किया। सिर्फ कहने को हम मुसलमान हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, हम अपने घर में कुरान रखते हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, यानी नमाज जुम्मे की पढ़ना, ईदेन पढ़ना, बस खतना करा देना, शादी के मौके से नई में मिल्लत को बुलाकर निकाह पढ़वा देना, बस इतना ही मुसलमान बनने के लिए हमने काफी समझा है। लेकिन नहीं, मुसलमान बनने के लिए आप आज के डेट में यह काफी नहीं रहा। जिस जमाने में दुनिया का हर इंसान हमारा मुखालिफ हो चुका हो, दुनिया की हर सोसाइटी हमको मिटाना चाहती हो, वो कौन सा समाज है जो इस्लाम दुश्मनी के नाम से आज नहीं जाना जा रहा है? हमारे हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के आखिरी हिस्से तक की मैं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए, अमली एतबार से सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी मजहब के मानने वालों की है तो वो हम मुसलमानों की है। लेकिन फिर भी हम जलील क्यों होते हैं? रोजाना अखबार पर मेरी निगाह जब पड़ती है, फौरन हमारे बच्चों की तबाही की खबर, जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर हमारी निगाह पड़ती है, ब्रेकिंग न्यूज जो सामने आती है, वो हमारे समाज के चलने की खबर हमारे सामने दिखाई देती है। कौन सी शाम है जो मुसलमान चलता ना हो? कौन सी सुबह है जब मुसलमान मारा ना जाता हो? आखिर इतनी रुसवाई, इतनी जिल्लत, इतनी तबाही, इतनी बदनामी हमारे नाम पर क्यों हो रही है? क्यों हम इसलिए आए थे कि लोग हमको दौड़ा दौड़ा के मारे? नहीं, हम दौड़ा के मार खाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि दौड़े हुए भागे हुए इंसानों को बचाकर उसमें इस्लाम की मोहब्बत पैदा करने आए थे। वो लोग जो झूठ बोलते हो उनको सीधे रास्ते पे लाना हमारा काम था, वो लोग जो जुल्म और ज़्यादती फैलाते हो उनको सिराते मुस्तकीम पे लाना हमारा काम था। मगर सारी दुनिया चाहती है इस्लाम मिटाया जाए, मुसलमान मिटाया जाए, मुसलमानों का कुरान मिट जाए, मदारिस मिट जाए, खानका मिट जाए। मुसलमान है कि इनको पता नहीं, इनको तो बिरयानी से फुर्सत मिलेगी तब नहीं ये इन बातों पे ध्यान देंगे। इनको तो मालूम है तबाही आएगी तो अशरफिया वाले समझेंगे, नहीं में मिल्लत संभालेंगे, मुफ्ती निजामुद्दीन संभालेंगे, अल्लामा बद्र आलम संभालेंगे। यानी आज हम मुसलमान अपनी सारी जिम्मेदारी इन उलमा पे थोप दिए, बस हमारा कोई काम नहीं। हम ये समझकर
کر گھر پہ پلاؤ بریانی کا مزہ لیتے ہیں. نہیں نہیں, وقت آئے گا ایک دن ایسا بھی اگر ہم ایسے ہی بے ہوش پڑے رہے ہمارا وجود دھرتی سے مٹایا جائے گا. پھر ہم کو پتا چلے گا کہ ہماری اوقات کیا ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. ہم اپنی غلطیوں سے توبہ کریں, اپنے روٹھے رب کو منائیں, اپنے حبیب کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے. انشاءاللہ ہم جب تک یہاں زندہ ہیں یہاں بھی کامیاب رہیں گے, مرنے کے بعد وہاں بھی کامیاب رہیں گے. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, اللہ اکبر. دیکھیے مبارک پور کے لوگ بہت خاموش ہو کر سنتے ہیں اور آپ کی خاموشی بہت خطرناک ہے کیونکہ اس میں سنجیدگی ہے. اب یہ خاموشی کس کروٹ آپ کو بدل دے گی اللہ جانے, چونکہ ایسے ماحول میں بہت کم ہی ہم جیسے خطیبوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے. ہندوستان کے دیگر ماحول میں ایسے ماحول میں تقریر کرتا ہوں جہاں پر 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 نعرے لگتے ہیں. اب ایسے جھنجھٹ والے ماحول میں تقریر کرنا بڑا آسان رہتا ہے کیونکہ ادھر نعرے لگ رہے ہیں, مولوی صاحب کچھ بول کے چلے گئے, کیا فرق پڑنے والا ہے. مگر آپ بہت سنجیدہ ہو کر سن رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اس لیے سنجیدہ ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں مجھے یہ امید ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں میری ایک ایک بات بالکل انٹر کی جا رہی ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں, ہم کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر جان ایسپوزیٹو جارج ٹاؤن یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے, عالمی تعلقات کی ذمہ داری ان کو لکھنے اور پڑھنے اور بولنے کی ہے. انہوں نے اسلام کے خلاف جو حالات دنیا بھر میں ہے اس کو بھاپتے ہوئے دنیا کو متنبع کرنے کے لیے, دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے, خاص طور پہ مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, دا فیوچر آف اسلام. اس میں کچھ ایسے پیراگراف تھے جو مجھے میرے ذہن و دماغ میں ہے. 2009 کے تقریباً ماہنامہ اشرفیہ میں اگست مہینے کا, اس میں مولانا ساجد مصباحی صاحب نے اس کو کچھ حصے کو انکلوڈ فرمایا ہے, وہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. مگر جو میں نے پڑھا, میں نے سیکھا, میں سمجھا ہوں, میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ کہتا ہے these people need to be forcibly converted into the Christianity. It's the only thing that can probably turn them into the Christianity. یعنی ہم مسلمانوں کے خلاف آج پوری دنیا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو جبرن تباہ کیا جائے, ان کے علماء کو, ان کے رہنماؤں کو مارا جائے, ان کی خانقاہوں کو بدنام کیا جائے, ان کے مدارس جہاں مسلمانوں کے بچے تعلیم پاتے ہیں, جہاں قرآن و حدیث پڑھ کر دنیا میں اس کی تبلیغ کرتے ہیں, ایسی جگہوں پر پابندی عائد کی جائے, وہاں تالے لگائے جائے, وہاں کی دیوار موٹی اور اونچی نہ ہو پائے. یہ کوشش دنیا کی ہے. اور ایسے حالات میں اگر مسلمان صرف کھانے پینے پہ دھیان دیا, اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدارس نہ بھیجے, اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کالج اور یونیورسٹی نہ بھیجے, جہاں چاہے اب اپنے بچوں کو پڑھائے, مگر تعلیم کو آپ عام کریں. جب آپ کے بچے پڑھیں گے, پڑھ کر ایک اچھا بنیں گے, اچھے سماج کا اچھا خادم بنیں گے. ظاہر ہے جس سماج میں تعلیم عام ہوتی ہے اس سماج کی ترقی مستحکم ہو جاتی ہے. اب وہاں اس سماج کے لوگ بالکل اپنے سماج کے استر سے نہیں گر سکتے ہیں, ایسا ماہرین کا ماننا ہے. ہم مسلمان خاص طور پہ اس علاقے کے آج سب کے صبح ہونے کے بعد آپ دیکھیں سب کا چہرہ حساس بساس رہتا ہے, منہ میں پان ہے, شام تک پان چبا چبا کے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا, باتیں کرنا, گالیانا, وہ اس کو گالی, وہ اس کو گالی, کہاں جاتا سالا, کہاں جاتا سالا. یعنی یہ ہم نے ماحول بنایا ہے. ہم ایسا نہیں کرتے. ہم ایسا پیغام دیں گے تو کیا ہم سے دنیا سبق لے گی. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل سے دنیا کو پتا چلے کہ جب مبارک پور کے مسلمانوں کا کردار اتنا اچھا ہے تو جس پیغمبر کے کردار کو انہوں نے نمونہ بنایا ہے اس مصطفیٰ کا کردار کتنا اچھا ہوگا. یہ تب ہوگا جب ہم مسکرا کر دوسروں سے بات کریں گے, یہ تب ہوگا جب ہنسی سے ہم دوسروں سے بات کریں گے, یہ تب ہوگا جب ہم کوآپریٹو مائنڈیڈ ہوں گے, جب ہم ایک دوسرے کی حمایت اور مدد کرنے کو اپنے آپ کو بالکل ہمیشہ تیار و آمادہ رکھیں گے. تب یہ ممکن ہوگا دنیا ہم سے سبق لے گی. تب یہ ممکن ہوگا جب ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے, اپنی بیوی سے محبت کریں گے. بیوی سے محبت کی بات آ گئی, والدین سے پیار کی بات آ گئی. ایک ہونہار باپ کا بیٹا, ہونہار بیٹا جو اپنے والد محترم کی صلاح ثواب پر اتنی بڑی محفل کا انعقاد کیا ہے, آپ ان سے متعارف ہے. ہم آپ کو بتایا کہ ہمارے حضرت ہے, ہم کو 2 سال حضرت نے تعلیم دی ہے, پڑھایا ہے. حضرت علامہ افضل مصطفیٰ صاحب قبلہ مصباحی نے مجھے پڑھایا, میں ان کا شاگرد ہوں. اب باپ کی محبت کیا ہوتی ہے میں آپ سے بتاؤں, نبی کی سیرت بتاتا ہوں. سیرت النبی محفل میں آپ بیٹھے ہیں. مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی میں نہ صرف نماز سکھایا ہے, یہ
और बात है कि हम में से बेशतर ये समझते हैं कि इस्लाम में कुछ नहीं है, सिर्फ नमाज है, रोजा है, हज है और ज़कात है। मैं ऐसे मुसलमानों को बताना चाहूंगा, नहीं नहीं, इस्लाम सिर्फ नमाज और रोजे का मजहब नहीं, इस्लाम सिर्फ हज और ज़कात का मजहब नहीं, इस्लाम तो हमारी जिंदगी और दुनिया के हर इंसान की जिंदगी को बदल देने वाला मजहब है। इस्लाम हमें सिखाता है, पैगंबर इस्लाम ने हमें क्या बताया है, वालिदैन से मोहब्बत, वालिदैन की इज्जत के ऐसा अमल मेरे मुस्तफा ने पेश फरमाया। आप मस्जिद नबवी में दाखिल हुए नमाज पढ़ाने के लिए, जैसे आप दाखिल होते हैं मेरे नबी को देखकर तमाम सहाबा खड़े हो गए। मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि आप लोग क्यों खड़े हुए, बैठ जाइए। आपने बैठने का इशारा फरमाया, खुद जाकर मसल्ले इमामत पर बैठे हैं। कुछ देर के बाद ज़ारो कतार मुस्तफा रो रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, सरकार आप नमाज पढ़ाने आए हैं, मसल्ले इमामत पर आप बैठे हैं, सरकार ये तो रोने की वजह, अब मैं जान सकता हूं कि रोने की वजह क्या है, ये रोने का मकाम तो है नहीं, आप रो क्यों रहे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं कि काश मेरे वालिदैन आज बाहर जिंदा होते, मैं पाता उनमें से चाहे बाप होते या मेरी माँ होती, कोई एक होते और मेरी माँ खास तौर पे मुझे बुलाती, वो अना फी सलातिल इशा, और मैं नमाज इशा में होता, वो क़राअतु फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताब, और नमाज इशा में ऐसे पीरियड में मेरी माँ मुझे याद करती, जब मैं नमाज इशा में सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ किसी जरूरत के तहत मुझे बुलाती तो मैं नमाज तोड़ के माँ की मोहब्बत पे हाजिर होता। ये मुस्तफा का पैगाम है। आप अपने सहाबा के बीच से फरमा रहे हैं कि मैं नमाज बाद में पूरी करता, पहले माँ की मोहब्बत पे हाजिर होता। मगर मैं पूछना चाहूंगा मुबारकपुर के मुसलमानों से, उन बच्चों से जिनको थोड़ी अकल आ गई, जो एक बार सऊदीया चला गया हो, जो 2-4 शहर घूम चुका हो, जिनके पॉकेट में 2-4 10 हजार महीने के आ जाता हो, उनको आज वालिदैन की इज्जत क्या होती है पता नहीं। वो अगर वो शादीशुदा है तो वो अपनी बीवी की फिक्र करते हैं, शादी अगर उनकी नहीं हुई है तो अपनी पॉकेट गर्म करने के लिए, बैंक बैलेंस बनाने के लिए, वो एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा और बेहतर मुस्तकबिल बिताने के लिए, वो अपना पैसा बनाने के लिए अपने वालिदैन को छोड़ते हैं। 80 साल का बाप मुबारकपुर में रो रहा है, मगर बेटा 50,000 कमाता है सऊदी अरबिया में, 50,000 कमा के वो अकाउंट में जमा करता है, वो बीवी के अकाउंट में भेजता है। वो बाप 80 साल का बूढ़ा, जिनकी ख्वाहिश है कि उम्र के आखिर हिस्से में बेटे की कमाई तो खाता, काश एक नौजवान एक बेटा अपने बाप को बगैर कहे 2-4 हजार दे देता। वो बाप जो कमर के दर्द से परेशान है, जो घुटने के दर्द से परेशान है, वो बाप जो जिनको चश्मे की जरूरत है, बाप बोल नहीं सकता है कि बेटा पैसा भेज दो, और बेटा देता नहीं बगैर बाप के बोले। ऐसा माहौल हो चुका है। बेटा अय्याशी करता है दिल्ली में, बेटा अय्याशी करता है मुंबई में, बेटा अय्याशी करता है पंजाब और हरियाणा में, मगर बाप यहाँ है बेचारा खटिया लिया हुआ है, वो अपने कमर के दर्द से परेशान है। मैं पूछना चाहूंगा, वो बेटा कैसे कामयाब होगा जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब या दोहा, सऊदी अरबिया कहीं जाकर 25 नहीं 50,000 कमाता हो। उसका बूढ़ा बाप अगर मुबारकपुर में 1 रुपये के टेबलेट की जरूरत के लिए वो बैठा हुआ हो, उस बेटे की कमाई में कभी बरकत न होगी। बाप अगर अपने बेटे के लिए एक पल आंसू गिरा देगी, काश मेरा बेटा अगर 1,000 मेरे नाम पे सेपरेटली भेज दिया होता तो उसी पैसे से मैं चश्मा खरीद लेता, उसी पैसे से मैं दवाई खरीद लेता, उसी पैसे से मैं कमर का इलाज करा लिया होता। मगर बेटा से कहा जाए कि तुम अपने बाप को पैसा भेजता क्यों नहीं, क्यों बार बार बीवी से बात करता है, क्यों ससुराल वालों को पैसा भेजता है, बेटा फख्र से बोलेगा, बुढ़े को जरूरत होगी तो फोन करेगा। मैं कहना चाहूंगा, नहीं नहीं, एक गैरतमंद बाप अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर कभी ये नहीं चाहेगा उस बेटे के आगे वो हाथ फैलाए। जिस बेटे के लिए एक बाप ने कभी जमीन बेची हो, जिस बेटे की खैरियत के लिए और बेहतर मुस्तकबिल के लिए जिस बाप ने अब जेवरात बंधक रखे हो, दुकान बेचे हो, वो बाप नहीं चाहेगा कि बेटा जब होशियार हो गया उसके आगे जाकर भीख मांगा जाए। इसलिए मुबारकपुर के नौजवानों, अगर आपके घर में बाप है, आपके घर में आपकी माँ है, तो उनको खुश कीजिए, उनकी खुशी में अल्लाह की खुशी है। जिस घर में जिन बच्चों के वालिदैन उनसे खुश नहीं, वो 50,000 नहीं 50 लाख कमाएगा, हमेशा परेशान रहेगा मोदी की तरह। कभी पैसा बंद करेगा, कभी सड़क बंद करेगा, कभी नोट बंद करेगा, कभी एनआरसी लाएगा, यानी दिमाग में बुखलाहट आएगी, जो चाहेगा वो अनाप शनाप काम करता रहेगा। यानी माँ बाप का जो बच्चा सेवक और खादिम रहता है उनका दिमाग शांत रहता है। 1 रुपया अगर वो बच्चा कमाता है मगर उनके वालिदैन उनसे खुश है, नहीं चाहिए उनको आजमगढ़ शहर में बड़ा मकान, नहीं चाहिए मुंबई की बड़ी बिल्डिंग, अगर 1 रुपया पर डे कमाता है, वालिदैन उनसे खुश है, तो उनके लिए दुनिया भी सही है, आखिरत भी सही है। मगर माँ बाप खुश
खुश रहे तब ना, माँ बाप खुश रहे तब ना। और एक हालत आज ये भी बदल गई है, बेटा हमारे उलमा की तकरीर से इस कदर मुतासिर हो गए कि सिर्फ वालिदैन से मोहब्बत, उनकी इज्जत, माँ के पास जाना, उनसे प्यार करना ये अच्छी बात है, मगर मैं एक जिम्मेदारी के साथ, उलमा कराम है, इससे बेहतर महफिल शायद मेरे लिए हिंदुस्तान में कोई दूसरी हो जहां अजीज मिल्लत के नायब बैठे हो। इतनी अजीमुशान महफिल और इतनी अच्छी बात कहने का मौका मुझे कहां मिलता है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको कह रहा हूं, उन बच्चों को जो सिर्फ माँ बाप की मोहब्बत में बिल्कुल गुम हो चुके हैं, घर में बीवी है और वो समझते कि बीवी तो खादिमा है, वो नौकरानी है, वो नौकरानी है, इसलिए ज़रबा यज़रबो की गर्दान जब चाहे तब उनकी पीठ पे करता रहे। मैं कहना चाहूंगा, किसने आपसे कह दिया कि टोटल जन्नत का हिस्सा माँ के कदमों के नीचे है? हाँ, मेरे मुस्तफा ने कहा है कि माँ के कदमों के नीचे अल्लाह की जन्नत है। इसका मतलब ये नहीं कि माँ की खुशी के लिए बीवी को नाराज किया जाए, माँ की खुशी के लिए बीवी को पीटा जाए, माँ की रजा के लिए बीवी को मारा जाए। आज हमारे बेशतर नौजवान सऊदी से 2 साल हो जाते, मगर वो माँ को तो फोन करता है, बीवी को फोन करता नहीं। अब उससे पूछा जाए कि बीवी को फोन क्यों नहीं करता, बोला अम्मी मना करती है, अम्मी, अगर मैं बीवी से बात करूंगा तो अम्मी बोलती है कि क्यों बात करता है। यानी ऐसा भी आज माहौल बनता जा रहा है, बीवी को मारना, पीटना, बात बात पे छोड़ना, तलाक देना, आज ये फैशन बनता जा रहा है, बच्चों का, नौजवानों का फैशन है। मैं ऐसे नौजवानों से कहना चाहूंगा, आप मुसलमान हो, जिस पैगंबर के आप नाम लेते हो, उस पैगंबर की जिंदगी शायद आपको मालूम नहीं। मेरे मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में जहां फरमाया था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उस पैगंबर इंसानियत ने अमल से दुनिया को बीवी से मोहब्बत के आदाब भी बताए थे, बीवी से मोहब्बत के आदाब बताए हैं। मेरे मुस्तफा एक बार हजरत सैयदा आयशा से फरमाते हैं, सैयदा आयशा पानी पी रही है, आप फरमाते हैं आयशा पानी पी रही हो? कहा हाँ पानी पी रही हो। कहा आधा पानी ही पीना, आधा गिलास पानी आयशा मेरे लिए छोड़ देना, मुझे भी प्यास का एहसास है। सैयदा आयशा आधा गिलास पानी पीती, आधा बचे हुए गिलास पानी को नबी की बारगाह में पेश करती है। सरकार पानी को गिलास समेत हाथ में लिए, मुंह के करीब ले गए, फिर छोड़ दिए, फिर मुंह के करीब ले गए, फिर छोड़ दिए, फिर करीब ले गए, फिर छोड़ दिए। सैयदा आयशा अर्ज करती, सरकार आपने प्यास का एहसास फरमाया, बचा हुआ पानी मैंने आपको बढ़ा दिया, गिलास में पानी है, पानी भी साफ है, गिलास भी साफ है, गिलास आपके हाथ में है, सरकार आप पीते क्यों नहीं है? उस गिलास में आप क्या निहार रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या तलाश कर रहे हैं? मुस्तफा का जवाब सुनिए, बीवियों को पीटने और मारने वालों, बीवियों से नफरत करने वालों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए आयशा मैं तब पानी पीऊंगा, मैं वो जगह तलाश कर रहा हूं जिस जगह तूने होंठ लगाकर पानी पिया है, मैं भी वहीं से अपने होंठ रखकर पानी पीऊंगा। ये मुस्तफा की जिंदगी है, मुस्तफा की सीरत का हिस्सा है। मेरे नबी ने ऐसी मोहब्बत का तरीका हम मुसलमानों को बीवी से बताया है कि हम भी अपनी बीवी से बेतहाशा मोहब्बत करें। जब तक बीवी खुश नहीं रहेगी तब तक घर में बहारें नहीं आ सकती, जब तक हमारी बीवी हमसे खुश नहीं रहेगी अल्लाह की जन्नत हम कैसे ले सकते हैं? माँ भी राजी हो, बीवी भी राजी हो, बहन भी राजी हो, बेटी भी राजी हो। अच्छे समाज की यही निशानी है कि उस समाज में औरतों की किस तरीके से इज्जत हो रही है, चाहे वो औरत बीवी की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, बहन की सूरत में हो। मेरे मुस्तफा ने बेटी के ताल्लुक से इतना जबरदस्त स्टेप उठाया था, दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब बाबा करने वाले मेरे मुस्तफा ने क्या कहा उस जमाने में जबकि लोगों ने बेटियों को जिंदा दरगोर किया था। चंद बातें मेरे ज़हन में आ गई, मैं पहुंचा रहा हूं। मेरे मुस्तफा ऐसे माहौल में आपने फरमाया बेटियां बचनी चाहिए, औरतों को इज्जत मिलनी चाहिए। आज लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि बेटियों को इज्जत देने की बात सबसे पहले किसने की? मैं कहना चाहूंगा गांधी हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े रहनुमा हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हैं। दुनिया का एक बड़ा रहनुमा आइंस्टाइन गुजरा है, दुनिया का एक रहनुमा अरस्तु गुजरा है, यानी जो जो जहां के रहनुमा थे उनकी रहनुमाई सिर्फ एक फील्ड, एक फैकल्टी, एक मैदान तक उनकी रहनुमाई महदूद थी। मगर मेरे मुस्तफा की रहनुमाई इंसान के लिए सर से पांव तक की रहनुमाई है। एक आदमी बीवी से कैसे मोहब्बत करे, बेटी से कैसे मोहब्बत करे, माँ से कैसे मोहब्बत करे, बेटी की इज्जत कैसे करे, बेवाओं की इज्जत कैसे करे। मेरे मुस्तफा करीम ने ऐसे माहौल में औरतों की इज्जत की आवाज बुलंद फरमाई थी जिस मुआशरे में दूर दूर तक बेटियों और बहनों की इज्जत की बात तक करने वाले कोई नहीं थे। मेरे मुस्तफा 25 साल की उम्र में, आज हम नौजवानों में से किसी से कहा जाए कि 25 साल के अब हो चुके हो, एक बुढ़िया 45 साल की तेरे समाज में बेवा है, तुम शादी कर लो। हुजूर अज़ीज़ मिल्लत के साहिबजादे फरमाएंगे, हुजूर नईम मिल्लत फरमाएंगे, बेटा तुम शादी कर लो, 25 साल तेरी उम्र हो गई है, अब शादी कर लो। खुशट बेटा हमारे समाज का, खुशट। 25 साल में कौन आज ये काला से काला लड़का भी हसास रहता है, उनके चेहरे पे मतानत और संजीदगी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा रहता है, इसलिए काले लोग भी 25 साल में खूब
खूबसूरत दिखते हैं, सो ये जो खुसट होते हैं, खुसट का मतलब बदसूरत ही ले लीजिए, बदसूरत लोग भी अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड समझते हैं। उस 25 साल के लड़के से कोई कहे कि तुम शादी कर लो किसी बेवा से, बड़ा अच्छा रहेगा, अल्लाह की जन्नत तुझे मिलेगी, वो कहेगा ए मौलवी साहब अपना मशवरा अपनी पॉकेट में रखो, धीरे से अपना घर जाओ, 25 साल में हम जवानी तबाह करेंगे क्या? आपका दिमाग खराब है? 25 साल में किसी बुढ़िया से किसी बेवा से निकाह करके अपनी जवानी खराब करनी है क्या? लेकिन नहीं नहीं, मेरे मुस्तफा ने 25 साल की उम्र शरीफ में, अल्लाह समद, 25 साल की उम्र में मेरे मुस्तफा कितने खूबसूरत रहे होंगे। वो नबी जिनकी खूबसूरती का तस्करा करते हुए एक मर्तबा मौला अली फरमाते हैं, वो मौला अली जो हकीमों के हकीम है, वो मौला अली जो तबीबों के तबीब है, वो मौला अली जिनके इल्म के एतराफ में खुद मेरे मुस्तफा ने किसी जमाने में कहा था, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट, मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर इल्म का दरवाजा है। वो मुस्तफा फरमाते कि अली बहुत पढ़े लिखे हैं, आप इतने होशियार और अक्लमंद हकीम अली कहते हैं। ए लोगों, मेरे नबी की खूबसूरती की बात कर रहे हो? अरे मैंने अपने मुस्तफा की 40 साल की उम्र शरीफ में चेहरे पे जब गौर किया है, उस वक्त की खूबसूरती का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि 40 साल की उम्र शरीफ के बाद जिस वक्त मेरे मुस्तफा जिस गली से गुजर जाते, उस गली की सारी चीजों की तस्वीर आपके चेहरे पे आ जाती। जिस दरख्त के सामने से नबी गुजरते, उस दरख्त का रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे नुमाया होता। मुस्तफा जिस घर के सामने से गुजर जाते, उसका अक्स आपके चेहरे पे दिखाई देता। यानी मेरे मुस्तफा 40 साल की उम्र शरीफ में जब इतना खूबसूरत थे, तो वो नबी 25 साल में कितने खूबसूरत रहे होंगे, कितने स्टैंडर्ड रहे होंगे। 25 साल की उम्र शरीफ में 40 साल की एक बार की विधवा नहीं, बल्कि 3 टाइम्स विधवा खातून से निकाह करके आपने दुनिया को पैगाम दिया कि आप दुनिया में कोई विधवा और बेवा को बेइज्जत नहीं करेगा, कोई औरतों को जलील नहीं समझेगा, क्योंकि औरतों को इज्जत के मकाम पे बिठाने के लिए इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर आ चुके हैं। मुबारकपुर वालों, नबी की सीरत सुनो, समझो। वैसे ही हम और आप बर्बादी के दहाने पे खड़े हो, आज सारी दुनिया हमको तब तबाह करेगी, वो अपने मिशन में दुनिया कामयाब होगी जब हम मुस्तफा की सीरत से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। खुदा के वास्ते अपने समाज में ऐसी तहरीक चलाई जाए। समाज में चूंकि आज से 100 साल पहले कई कई नारे लगे, किसी ने कहा मुसलमानों को बर्बाद किया जाए, किसी ने कहा 2050 आने से पहले पहले दुनिया भर से इस्लाम और मुसलमानों का खात्मा कर देंगे। तो हमारे हिंदुस्तान से भी एक कमलेश तिवारी नाम का बोला कि मैं 25 आते आते हिंदुस्तान से मुस्लिम मुक्त हिंदुस्तान में बनाऊंगा, यहां से एक एक मुसलमान को निकाल के बाहर करूंगा। यह और बात है कि 2025 का चेहरा बेचारा नहीं देख पाया, मगर नारा और नैरेटिव अपने समाज में उसने देकर हमारे हिंदुस्तान जैसे अजीज मुल्क के माहौल को खराब करने की उसने कोशिश की थी। यानी अमेरिका का हमारा जालिम कहता है 2050 आते आते दुनिया भर से, चाहे वो अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, बर्तानिया हो, अफगानिस्तान हो, दुनिया की जो सोसाइटी हो, हर सोसाइटी से इस्लाम को, मुसलमान को हम भगाएंगे। उन लोगों ने तहरीक चलाई हमको भगाने के लिए, हमको मिटाने के लिए, हमको बर्बाद करने के लिए, हमारी खानकाहों को मिटाने के लिए, मदारिस को मिटाने के लिए। हिंदुस्तान का पागल बोला हम 25 तक मिटा देंगे। अब ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया चाहती हो कि कोई कहता हो कि मैं 25 तक मिटाऊंगा, कोई कहता हो मैं 35 तक मिटाऊंगा, कोई कहता हो मैं 50 तक मिटाऊंगा, यानी जिस माहौल में लोग चाहते हो अल्टीमेटम देकर, एक टाइम देकर कहते हो कि हम 25 तक, 50 तक, 35 तक मुसलमान और इस्लाम का खात्मा चाहते हैं, ऐसे माहौल में मुसलमानों की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। अब मुसलमान फिर यानी छोड़ दे, एक ऐसा अमल इख्तियार करे जब दुश्मन तहरीक छेड़ दे, मुसलमान भी तहरीक चलाए, बच्चे बच्चे तहरीक चलाए, हर एक आदमी अपने अंदर कसम खाकर ये तय कर ले हम जिएंगे तो मुस्तफा के कानून के आधार पे जिएंगे, हमारी जिंदगी का एक एक हिस्सा कानून मुस्तफा के आधार पे गुजरता रहेगा, यानी हम जिंदगी गुजारते रहेंगे मुस्तफा के कानून के आधार पे। एक मुसलमान ये अहद कर ले कि हम अपनी बच्चों को पर्दे का पैगाम देंगे, हम उन दुश्मनों से ताकत से नहीं लड़ सकते, हम अपने किरदार से लड़ सकते हैं, अपने ईमान को मजबूत करके लड़ सकते हैं। जिस माहौल में हमको बदकिरदार बनाने के लिए लोगों ने तहरीक चलाई हो, उसी माहौल में हम अपने किरदार से तहरीक चलाकर एक जोरदार तमाचा रशीद करें अपने दुश्मनों के चेहरे पर। ए जालिमों, अगर तूने 2050 का टारगेट हमको उखाड़ने के लिए दिया है, तो हम भी अपने को गाड़ने का टारगेट दे रहे हैं, हम भी 50 का टारगेट देते हैं। तूने टारगेट दिया है कि पूरी दुनिया से इस्लाम और मुसलमान का खात्मा करेंगे, हम भी एक तारीख चलाते हैं 2050 आने से पहले पहले पूरी दुनिया में इस्लाम फैला के रहेंगे।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद यानी हम जिंदाबाद। कैरेक्टर से, हम अपने किरदार से, हम अपने अमल से, आज वैसे ही पागल लोग आते रहते हैं, कोई इस्लाम मिटाने की बात करता है, उससे कोई जरूरत हमको टेंशन लेने की नहीं, कोई कुरान मिटाने की बात करता है, हम कुरान पे अमल करें ना यार, वो खुद जलील हो जाएगा। हम कुरान के फरमान पे अमल करें, एक कुरान क्या मिटाएगा। मुसलमान कसम खाए घर घर में हाफिज कुरान तैयार कर दे, कोई मिटाने वाला तैयार नहीं होगा। मुसलमान जब अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएगा नहीं तो वो जाहिर सी बात है हमारे दुश्मनों को चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, वो कुरान मिटाने की बात करेगा। आज से 150 साल पहले नेपोलियन नामी एक बहुत बड़ा बादशाह फ्रांस का, उसने भी ऐसी कोशिश की थी कुरान मिटा दिया जाए, कुरान का कानून मिटा दिया जाए, इस्लाम मिटा दिया जाए। कई साल तक दुनिया का पढ़ा लिखा जबरदस्त ताकत का मालिक बादशाह नेपोलियन है। नेपोलियन हमारे बादशाह की तरह ये जाहिल नहीं है कि अनाप शनाप कानून नाफिज करता रहेगा। नेपोलियन एक समझदार 50 से 60 हजार फौज के दस्ते का अकेला मालिक बादशाह का नाम नेपोलियन है। कई साल तक सोचता रहा, कुरान मिटाने की बात करता रहा, अपनों में बोलता रहा। अचानक एक दिन रात को समझ में बात आई, क्यों ना कुरान मिटाने से पहले एक बार कुरान पढ़ लिया जाए, कुरान देख लिया जाए, कुरान का स्टडी किया जाए, कुरान कहता क्या है, कुरान बताता क्या है, कुरान देता क्या है, कुरान बांटता क्या है। इस इरादे से उसने रात के अंधेरे में वो अपने मुताले के मेज पर कुरान पाक की चंद उसके इंग्लिश अनुवाद के मंगा कर रखा है। अब वो स्टडी करना शुरू किया, 2-4 सफात पढ़ा ही था, दिल की दुनिया चेंज हो जाती है। नेपोलियन जो अभी से कुछ साल पहले तक उनकी कोशिश थी कि कुरान मिटा दिया जाए, कुरान के कानून पे लोग अमल ना करें, मगर अब वही नेपोलियन अपना स्टेटमेंट देते हुए हम जैसे मुसलमानों को समझाना चाहता है। नेपोलियन कहता है, I hope that time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men from all countries of the world to establish a uniform based on the principles of Quran, which alone are true, which alone can lead man peace and prosperity. अल्लाहु समद। यानी हम मुसलमान मुर्गा और पुलाव के चक्कर में पड़ गए, मगर नेपोलियन कुरान पढ़कर कुरान की सच्चाई का इल्म हासिल करते हुए दुनिया को आगाह किया। ए दुनिया वालों, I hope that time is not far off। मेरी आशा है, मेरी तमन्ना है, बहुत जल्द ऐसा भी वक्त आने वाला है when I shall be able to unite all the wise and educated men from all countries of the world। वो कहता है मेरी आशा क्या है कि बहुत जल्द मैं दुनिया के तमाम पढ़े लिखों को, जुमलों पे गौर कीजिएगा, तमाम पढ़े लिखों को एक फॉर्म पे ले आओ। पढ़े लिखे नेताओं को, जाहिलों की बात तो वो पहले ही नहीं किया है। यहाँ जाहिल नेता बनेंगे तब ना अनाप शनाप कानून लाता है। हम जाहिलों को वोट करते हैं तब ना वो अनाप शनाप बोलता है, बकते रहता है। उनको पता नहीं वो पैसा जो समाज के चलन में आता हो उसी को बंद कर दे, उसे पता नहीं कौन रहेगा कौन जाएगा, बस कानून नाफिज करना चाहिए, बस कपड़ा बदल के कभी दाढ़ी बढ़ा के। यानी ये इनकी फितरत है। इनको समझाते हुए ऐसे नेताओं से बचने का पैगाम भी वो अपने जुमलों में दे रहा है। वो कहता आई होप द टाइम इज not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men from all countries of the world। वो कहता है दुनिया के तमाम ममालिक से सिलेक्टेड पढ़े लिखे लोगों को लेकर एक छत के नीचे में आ जाऊं। अल्लाहु समद। पढ़े लिखों को लेकर दुनिया का बड़ा बादशाह नेपोलियन, जो अभी इस्लाम मिटाना चाह रहा था, अभी कुरान मिटाना चाह रहा था, दुनिया की शांति की फिक्र इनके दिमाग में आती है। नेपोलियन देखता है दुनिया की तबाही को अपनी निगाहों से, दुनिया जल रही है, नेपोलियन महसूस कर रहा है। नेपोलियन सोचता है इस जलती हुई दुनिया को जलने से कैसे बचाया जाए, ये मरती हुई दुनिया को मरने से कैसे बचाया जाए, ये तबाहकुन दुनिया को तबाही से कैसे बचाया जाए। नेपोलियन एक रास्ता तलाश करना चाह रहा है, उस रास्ते पर दुनिया के तमाम पढ़े लिखे लोगों को लाना चाहता है। नेपोलियन देखता है आज पूरी दुनिया में झगड़े हो रहे हैं। नेपोलियन अपने दिमाग से सोचता है दुनिया का हर इंसान आज झगड़े में मुब्तला है। बाप बेटे में नफरत, बेटी और मां में झगड़े, भाई भाई में लड़ाई, यानी घर के अंदर की बात की जाए या घर के बाहर की बात की जाए, हर जगह झगड़े और लड़ाई होती है। अब मुबारकपुर वालों के सामने खैराबाद वाले आ जाए, मुबारकपुर वाले मोच में घी लगाकर वो ताव देंगे कि बात तेरे पास क्या है, एक छोटा सा मदरसा, मेरे पास तो यूनिवर्सिटी है। यानी मुबारकपुर की तो अलग शान है माशाअल्लाह। पूरी दुनिया में मुबारकपुर लूम की वजह से जाना नहीं जाता है, पूरी दुनिया में मुबारकपुर की इज्जत अल-जामिअतुल अशरफिया से हो रही है। मुबारकपुर वालों आप क्या हो आपको पता नहीं, आप क्या हो आप बाहर जब जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या हो। यहां आप दिन भर पान खा के घूमते रहते हैं, इसलिए आपको अपनी
अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं। ये मुसव्विर जो बोल रहा है इसमें भी आपकी कुव्वत है, आपकी दाल रोटी की ताकत है। ये मत समझिएगा कि आपके पैसे बिल्कुल बेकार जाते हैं। आपने मेहनत की, पैसा दिया, इमारत बनाई, असातिज़ा रखे, मदरसा बनाया, हुजूर हाफिज मिल्लत का साथ आपके बाप दादाओं ने दिया। आज उसका रिजल्ट मुसव्विर जैसे एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से आपके सामने खड़ा है और बोल रहा है। आप अंदाजा फरमाए कि आपके जामिया का जब एक मामूली तालिब इल्म इस तरह का बोलता है, बोल सकता है और ज़हन रखता है, तो आप समझिए कि जो आपके जामिया से एक नंबर पे फारिग होंगे वो किस तरह क़यामत ठाते होंगे, वो किस तरह तबलीग करते होंगे। मसले के आला हजरत के सच्चे सिपह सालार आपके ही जामिया से निकलते हैं। मसले के आला हजरत का झंडा यहीं से वो बुलंद होता है और क़यामत तक होता रहेगा। चाहे कोई नारा लगाए, कोई इल्जाम लगाए, उससे हम लोगों को, हम मिसबाइयों को क्या फर्क पड़ने वाला। हमारे हुजूर ने तो फरमा दिया, काम करोगे नाम होगा, टेंशन मत लो। इसलिए हम लोग काम किए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह नाम हो ही जाएगा। बाद में काम करेंगे तो नाम होता जाएगा। इसलिए जो एतराजात हो रहे हैं उस पे हम लोग कान नहीं धरते। मेरी बात ज्यादा तवील हो रही, मैं अर्ज कर रहा था। नेपोलियन कहता है आज पूरी दुनिया में झगड़े हो रहे हैं, बाप बेटे में लड़ाई, माँ बहन में नफरत, एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से चिढ़ता और जलता और नफरत करता है। एक राज्य वाले के सामने दूसरा राज्य वाला आ जाए, यानी मुंबई अगर बिहारी और यूपी वाला चले जाए तो महाराष्ट्र में लोग बोलते हैं बिहारी आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, मारो इसको, भगाओ इसको यहाँ से। यानी हम पूरी दुनिया की अगर बात करें, राज्य के एतबार से, मुल्क के एतबार से, समाज के एतबार से नफरत लोगों के ज़हन और दिमाग में भर चुकी है। एक आदमी अपने सामने किसी को टिकने देना नहीं चाहता है, वो अपने आप को सबसे बड़ा काबिल, सबसे बड़ा अच्छा। एक काला अपने कालेपन से ही वो फख्र करता है, एक गोरा अपने गोरेपन पे फख्र करता है, एक आलिम वो दूसरों को माने ही नहीं लगाता है। दो चार तकरीर करना किसी को आ जाए तो वो सबसे बड़ा मुफ्ती अपने आप को समझता है। यानी ये दुनिया का मामूल बन चुका है। यही नफरत की एक वजह है। नेपोलियन कहता है ए दुनिया वालों, दुनिया में जो नफरत फैल रही है, नफरत का जो माहौल है, इसकी वजह बताते वो कहता है इसलिए नफरत दुनिया में कायम है कि दुनिया की हर सोसाइटी का कानून अलग अलग है। 10 किलोमीटर दूर के बाद जबान में थोड़ी चेंजिंग पाई जाती है, 50 किलोमीटर दूर में इंसान की तहजीब चेंज हो जाती है, 100 किलोमीटर दूर जाने के बाद अंदाजे जिंदगी में तफरीक देखी जाती है, मुल्क बदलने के बाद संविधान अलग दिखाई देता है। नेपोलियन कहता है यही तो झगड़े की जड़ है कि बहैसियत इंसान सब बराबर है। इंसान चाहे हिंदुस्तान का हो या अमेरिका का हो, इंसान चाहे फ्रांस का हो या न्यूजीलैंड का हो, इंसान चाहे मलेशिया का हो या इंडोनेशिया का हो, इंसान चाहे जर्मन का हो या जापान का हो, इंसान होने की हैसियत से सब बराबर है। जब इंसान होने की हैसियत से सब बराबर है तो हिंदुस्तानियों के लिए अलग कानून क्यों, पाकिस्तानियों के लिए अलग ज़ाब्ते जिंदगी क्यों, अफ्रीकन के लिए अलग कानून हयात क्यों, इंग्लिस्तानी के लिए अलग कानून जिंदगी क्यों। यानी नेपोलियन कहना चाहता है यही तो झगड़े की जड़ है। इंसान होने में हिंदुस्तानी भी एक, पाकिस्तानी भी एक, बांग्लादेशी भी एक, अमेरिकन भी एक, न्यूजीलैंड वाले भी एक, अफ्रीकी भी एक, मगर अफ्रीका का कानून अलग, अमेरिका का कानून अलग, न्यूजीलैंड का ज़ाब्ता अलग, हिंदुस्तान का ज़ाब्ता अलग। वो कहा यही झगड़े की बुनियाद और जड़ है, यही वजह है कि सारी दुनिया में लड़ाई होती है। घर के अंदर से लेकर घर के बाहर की अगर बात की जाए, हर जगह लड़ाई है। अमेरिका जो सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया में आज गिना जा रहा है, इतना ताकतवर मुल्क अमेरिका है, वहां के भंगी के पास हमारे सेठ से जायद पैसे हैं। वो टॉयलेट साफ करने वाले मर्सिडीज कार पे जाते हैं। वहां के बिगर्स, वहां के भिखारी वो 1 लाख रुपया से कम भीख लेते ही नहीं है। यानी वो अमेरिका जो हर तरह से परिपूर्ण हो, वो अमेरिका जहां सब लोग खुशहाल हो, वो अमेरिका जहां लेटेस्ट और आधुनिक हथियार दुनिया भर में सबसे ज्यादा वहां की फौज के पास जो ताकत है दुनिया में किसी फौज के पास वो ताकत नहीं। वहां के एटमी हथियार इतने हैं दुनिया में कहीं नहीं है। उसके बाद होना यह चाहिए था, इतना खुशहाल मुल्क और समाज अमेरिका, उनको किसी से लड़ाई से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए थी। मगर फिर भी रात के अंधेरे में अमेरिका को पता चले कि चाइना ने आइटम बम बनाया है, अब उसकी नींद हराम हो जाती, अब वो अटैक की बात करता है, वो सामने वालों को मारने की बात करता है। यानी वो मुल्क जहां का भंगी भी करोड़पति हो, फिर भी लालच और तमा वहां पे है। जहां फिक्र है, पढ़ाई है, लिखाई है, समाज है, तरक्की है, फिर भी लालच और तमा उसी समाज में है। अब यही वजह बताकर नेपोलियन कहता है यही झगड़े की बुनियाद है कि अमेरिका अलग होशियार बनना चाहता है, हिंदुस्तान अलग चालाक बनना चाहता है, पाकिस्तान अलग होशियार बनना चाहता है। अब वो कहता है दुनिया से नफरत तब मिटाई जाएगी जब सारी दुनिया के कवानीन को मिटाकर सारी दुनिया को बर्बादी से बचाने के लिए एक ज़ाब्ता लाया जाए, एक
एक कानून लाया जाए, एक कानून जिंदगी लाई जाए, वो कौन सा कानून हो, वो कौन सा निजाम हयात हो। अब नेपोलियन का जुमला सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। ये और बात है, हमको अपने कॉलेज की पढ़ाई में हम इतना मस्त है, अपने कुरान के कानून के ताल्लुक से हम में कोई गंभीरता और संजीदगी नहीं है, मगर नेपोलियन कहता है टू इस्टेब्लिश ए यूनिफॉर्म, मैं ऐसा कानून नाफिज करना चाहता हूं जो दुनिया भर में शांति लाए। वो कानून कौन सा हो, वो कानून किस किताब के नजरिए के एतबार से हो, किसके कॉन्सेप्ट के एतबार से हो। अब वो कहता है वो कानून न ऋग्वेद के आधार पे हो, न सामवेद के आधार पे हो, न यजुर्वेद के आधार पे हो, न गांधी के थॉट्स के आधार पे हो, न अंबेडकर के हिसाब से हो, दुनिया के किसी बड़े मुफक्किर के कानून के एतबार से न हो। वो किताब हो तो कौन सी किताब हो, वो कहता है टू इस्टेब्लिश ए यूनिफॉर्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान। वो कहता है दुनिया तब आग से जलेगी, जलती हुई दुनिया तब बुझेगी, तब दुनिया में शांति आएगी जब पूरी दुनिया को शांत करने के लिए कोई और किताब नहीं, कुरान के आधार पे कानून आएगा, पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। दुनिया का जिसने कुरान मिटाना चाहा, जिसने हमको मिटाना चाहा, जिसने आपको मिटाना चाहा, उनकी आंखें खुली, उन्हें हमको फिर बताया कि दुनिया में तब शांति आएगी जब सारी दुनिया में शांति बपा करने के लिए कुरान के ज़ाब्ते के एतबार से सारी दुनिया का अलग ज़ाब्ता बन जाए, तब जाकर दुनिया में शांति आएगी। इसलिए मुसलमानों, हमारे पास आपके पास वक्त कम है, न जाने कब कोरोना वायरस के आगोश में हम चले जाएं। अब तो लेटेस्ट एक और वायरस 2-4 दिन पहले आया है। किसी ने मुझसे कहा कि पहले वाला वायरस छोटा भाई था, अभी उसका अब्बा आ गया है। पहले तो 2-4-5 दिन डॉक्टर के पास जाने का टाइम भी वायरस देता था, मगर ये तो टाइम भी नहीं दे रहा है, 2 दिन के अंदर ही मार दे रहा है। यानी कब जाने कहां हमारी मौत हो जाए। इसलिए वक्त बहुत कम है, हम अपनी गलतियों से तौबा करें, अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। बाप बेटा, बहन भाई, मर्द औरत, आलिम जाहिल, सब लोग ये अहद कर ले कि हम जिएंगे तो मुस्तफा के कानून के आधार पर जिएंगे। जब तक घर के गार्जियंस आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक उस समाज के बच्चे नहीं सुधर सकते हैं। बाप अलग कहीं मुस्कुराएगा तो बेटा तो मुस्कुराएगा ही मुस्कुराएगा। भाई अलग अगर कहीं रंगीन दुनिया में घूमेगा, उसकी बहन भी घूमेगी। इसलिए जो लोग बड़े हैं, जो समाज के जिम्मेदार हैं, हर जिम्मेदार अपने समाज का एक राष्ट्रपति होता है। हर आदमी अपने घर का एक बड़ा मुखिया जो है वो अपने घर के लिए प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की ताकत का अंदाजा आपको हो चुका है। प्रधानमंत्री अगर नींद में उठ के भी बोल दे कि कल से 500 बंद, तो सब लोग मानने को तैयार होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, वो देश के प्रधानमंत्री थे जिनकी बातों पे हमने पंसैया को बंद समझा, हजरिया को बंद समझा। आप में से हर आदमी अपने समाज का प्रधानमंत्री है। जो बाप है वो अपने घर का प्रधानमंत्री है, जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का प्रधानमंत्री है, जो दादा है वो अपने घर का राष्ट्रपति है। उनको सबसे पहले 5 वक्त के लिए मस्जिद में अपने आप को जाना होगा, तब जाकर उनके बच्चे जरूरी समझेंगे कि हम भी अपने वालिदैन के पीछे मस्जिद जाए। बड़ा भाई नमाज पढ़ेगा, छोटे भाई की हिम्मत टूट जाएगी, वो खेल छोड़ देगा, अपने भाई के साथ होगा, वो भी नमाज पढ़ने जाएगा। यानी हम अपने बड़ों को देखकर ही हम सुधर सकते हैं। वो गरीब का वाकया मैं अक्सर बताया करता हूं, आज भी वक्त है मेरे पास, मैं बता दूं। एक ऐसा गरीब तंगदस्त इंसान, 3 दिन हो गए, जवान बेटी घर में पल रही है, नमाजी है, मुत्तकी है, मगर वो बेटी, उनकी बेटी कहती है अब्बा आप नमाज पढ़ते रहेंगे, इसी तरह इबादत करते रहेंगे तो ये चूल्हे कैसे जलेंगे, हांडी कैसे चढ़ेगी। अब्बा आप जाइए ना कुछ कमा के लाइए। 80 साल का बूढ़ा बाप, 18 साल की बेटी है, बेटी कहती है अब्बा कमाने जाइए। अब 80 साल का बाप भी उस आलम में भी कौन बाप ऐसा हो सकता है जो अपनी बेटी की ख्वाहिशात की तकमील का रास्ता इख्तियार न करे। बाप कहता है बेटी इस उम्र में मैं कमाने जाऊं, मेरी इच्छा नहीं होती, मगर जब तुम कहती हो तो बेटी मैं जाऊंगा मार्केट काम की तलाश में। सुबह नमाज फजर के बाद बेटी बाप के हाथ में झोला पकड़ाई और कही ए अब्बा जाइए कमाने के लिए। बाप मार्केट गया, मार्केट में चारों तरफ घूमता रहा, शाम हो गई, बूढ़े को काम न मिला, ठोकरे खाता हुआ वापस घर की तरफ बढ़ा है। इधर बेटी दरवाजे पर खड़ी बाप की आमद का इंतजार कर रही है, काश अब्बा अभी आ जाए, अब्बा कब आ जाए, अब्बा झोली भर के सामान लाए। यानी बेटी सोचती है अब्बा कमाने गए हैं, झोली भर के सामान लाएंगे, दाल चावल सब्जी लाएंगे, आज कई दिन के बाद चूल्हा जलाऊंगी, हांडी चढ़ाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, जमकर खाकर नमाज पढ़ूंगी, अल्लाह की इबादत करूंगी। एक नमाजी इंसान की नमाजी बेटी बाप की आमद का इंतजार दरवाजे पे कर रही है। उधर शाम होते ही बूढ़ा बाप जैसे ही दरवाजे पे खड़ा हुआ, बेटी की निगाह बाप की निगाह से बाद में टकराई। पहले बेटी अपने
बाप के हाथ में खाली झोली को देखकर रोने लगी। अब्बा हुजूर, आपको मैं झोली पकड़ाई थी कि आप काम करके झोली भर के सामान खरीद के लाएंगे, लेकिन अब्बा आपकी झोली खाली है। आपकी जवान बेटी आज क्या पकाएगी, क्या खाएगी? अब्बा क्या आपको काम न मिला? अब्बा आपकी बेटी आज रात कैसे गुजारेगी? बाप कहता है बेटी अंदर चलो मैं बताता हूँ। बाप बूढ़ा अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़ा, अंदर ले गया। बाप कहता है मेरी बेटी तुम साबिरा हो, तुम और सब्र करो। बेटी तुम रात गुजारना चाहती हो, अगर कल रात नमाज इशा के बाद तूने एक पारे कुरान पढ़े थे, आज 5 पारे पढ़ते तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। ए बेटी सब्र करो, अगर तू सब्र करेगी तेरी सब्र की वजह से अल्लाह तेरे बाप को इससे बेहतर बदला कल अता फरमा देगा। बेटी सब्र करो, नमाज मत छोड़ो। अगर हम और आप होते इस कदर कॉम्पिटेटिव माहौल में, कौन आदमी नमाज पढ़ता है? अगर अशरफिया नमाज पढ़ने जुमा की जाना पड़े, किसी के गाड़ी में पेट्रोल ना हो और साइकिल में हवा ना हो और जुमा का वक्त हो जाए, उसको घूमता हुआ देखकर हम और आप पूछ रहे कि नमाज क्यों नहीं पढ़ने गए? बोलेगा कैसे नमाज पढ़ने जाएंगे मौलाना साहब, गाड़ी में तेल नहीं, साइकिल में हवा नहीं। यानी सिर्फ थोड़ी परेशानी हो जाए आदमी नमाज तोड़ता है, नमाज छोड़ता है, रोजा तोड़ता है, गैस के प्रॉब्लम, बुखार का प्रॉब्लम, यानी दुनिया भर का टेंशन लेकर वो छोटे से टेंशन को वो लेकर चलता है, वो बहाना तलाशता है और इबादत से अपने आप को हटा अलग कर लेता है, अलग दुनिया बना लेता है। मगर हमको सबक लेना चाहिए उस बूढ़े से जिस बूढ़े ने अपनी बेटी से ये नहीं कहा बेटी आज तिलावत मत करो, बेटी आज नमाज इशा मत पढ़ो, चुपचाप सोने चले जाओ। मगर वो बाप कहता है बेटी अगर तूने 1 पारे पढ़े थे आज 5 पारे पढ़ ले, तेरी रात गुजर जाएगी। बेटी सब्र करो, अल्लाह बदला और अजर बेहतर अता फरमाएगा। अब दूसरी सुबह नमाज फजर के बाद फिर बेटी अपने बाप को झोली पकड़ाई। बाप गया मार्केट काम की तलाश में, शाम तक मार्केट में बूढ़ा घूमता रहा, कहीं कोई काम न मिला, वापस फिर घर लौटा है। दूसरी शाम को भी बेटी दरवाजे पर खड़ी बाप की आमद का इंतजार कर रही है कि अब्बा अभी सामान खरीद के लाएंगे, अभी पकाऊंगी सब्जी, रोटी पकाऊंगी, खाऊंगी। मगर बाप फिर खाली झोली लेकर वापस आया। फिर दूसरी शाम को भी बेटी ने एतराज किया, बाप ने वैसा ही जवाब दिया। तीसरी सुबह को फिर बेटी अपने बाप को झोला दे दी और मार्केट भेजी। यानी लगातार 3 दिन तक बेटी मश्क करती रही, रोजाना सुबह अपने बाप के हाथ में झोली पकड़ाती रही, मार्केट भेजती रही। बाप वापस आता रहा, मार्केट से खाली झोली लेकर आता रहा। आखिर में चौथी सुबह बेटी बिल्कुल तय कर ली आज अब्बा को भेजूंगी। अगर अब्बा आज खाली झोली लेकर वापस आएंगे तो कोई चौथा रास्ता, तीसरा रास्ता मुझे ही इख्तियार करना होगा। अब वो जवान बेटी बूढ़े बाप को झोली पकड़ाकर मार्केट भेजी है। बाप वापस फिर लौटा है। जैसे बाप दरवाजे पे आया, अभी बेटी कुछ कहना ही चाह रही थी, मगर बूढ़ा बाप 80 साल के बुढ़ापे की उम्र में 4 दिन मार्केट में घूमता रहा। घूमने की थकान अलग, सारी परेशानी अलग, भूख की शिद्दत का गलबा अलग, तमाम तरह की परेशानियां की वजह से जब वो आदमी बिल्कुल लागर और कमजोर हो गया, घर आकर गिर गया, बेहोश हो गया। बाप को एक जवान बेटी बेहोश बाप को घसीटते हुए चरपाई पे लिटा दिया है। अब बेटी कहती सोचती यह है कि अब इस घर के खर्ची के लिए मुझे ही किसी रास्ते को इख्तियार करना होगा, कैसे बाप को मरने से बचाऊंगी। अब बेटी जवान देखती है कि बूढ़ा बाप 4 दिन लगातार मार्केट गया है, काम न मिला। बेटी समझ गई बुढ़ापे की वजह से अब्बा को कोई काम में नहीं लगाए, बुढ़ापे की वजह से कोई होशियार आदमी इनको ड्यूटी नहीं दिए। मैं भी आपसे कहूंगा आप जब मजदूर तलाशने के लिए आप मार्केट जाए, किसी को देखे तो सिर्फ फरबा और मुस्टंडे को नहीं ले, कोई बूढ़ा भी उसमें मजबूर खड़ा होगा, जिनकी बेटी वहां तलाश कर रही होगी, जिनके बच्चे भूखे होंगे। अब ये ई रिक्शा का दौर चल चुका है ना, ई रिक्शा का जमाना आ गया, तो कोई पैडल वाले रिक्शे वाले को बोलता ही नहीं है कि मुझे इस्तेमाल में लो, कोई उसको इस्तेमाल में लेता ही कहां है। वो बोलता है कि मैं चट मंगनी पट बिया फौरन बैठूंगा, फौरन पहुंच जाऊंगा। खुदा रहा ई रिक्शा का भी इस्तेमाल आप करें, लेकिन जरूरतन करें। अगर आपके पास टाइम हो इतना तो आप जरूर पैडल वाले को भी तलाश करें। काश आप उनके रिक्शे में बैठकर 20 रुपया आप देंगे, हो सकता है उस 20 रुपये से उसके घर में उनकी बेटी, उनके बच्चे, उनकी औलाद भूखी हो, वो उनके पेट भर जाए। ये इस्लाम कहता है। अब वो बेटी सोचती है अब कैसे अब्बा को बचाया जाए। बेटी रात भर सोचती रही कहां से रोटी का इंतजाम हो, कहां से सब्जी का इंतजाम हो, कहां से दाल चावल का इंतजाम हो। रात के आखिरी पहर नमाजी की बेटी, इबादत गुजार की बेटी, सायमुत्तहर की बेटी, आबिद शब जिंदादार की बेटी के दिमाग में एक शैतानी वसवसा हाइल हुआ। अब
बेटी फैसला करती है मुझे ही किसी गलत रास्ते पर चलना होगा, बेटी नकाब पहनकर घर से बाहर भागती है अंधेरे में। बाप सुबह की अजान सुनते ही जैसे होश पे आया, देखता क्या है, जवान बेटी उस गरीब बाप के घर में है नहीं। अब गरीब बाप घबरा गया, घबराते हुए बोलने लगा, मेरी बेटी कहां चली गई? पड़ोस में तलाश किया, घर में खोजा, जब कहीं बेटी का कोई इन्वेस्टिगेट करते हुए नहीं बेटी मिली, अब वापस वो बूढ़ा उसी हुजरे में दाखिल हुआ जहां रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता था, जहां से अल्लाह को याद किया करता था। उसी कमरे में दाखिल होता है, अपनी पेशानी सजदे में रखता है और वो बूढ़ा अल्लाह से अर्ज करता है, ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे गरीब बनाया, मुझे अपनी गुर्बत पे बड़ा फख्र है। ए अल्लाह, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, फिर भी मैं जी रहा था, मगर इस गरीब इंसान की गुर्बत के आलम में भी एक जवान और खूबसूरत बेटी की नियामत से भी तूने सरफराज फरमाया। ए अल्लाह, आज मेरी जवान बेटी मेरी इजाजत के बगैर पता नहीं कहां भाग गई है। अल्लाह, मैंने बहुत तेरे नाम के सजदे रखे, बहुत तेरी तिलावत, तेरे कुरान की तिलावत की, बहुत तेरा नाम लिया। अल्लाह, मेरा अगर एक सजदा तूने कबूल किया है तो उसी सजदे का वास्ता है, मेरी बेटी की इज्जत की मुहाफजत फरमा ले, मेरी बेटी की इज्जत को बचा ले। दुनिया के जिस हिस्से में मेरी बेटी हो, मेरी बेटी को बदनिगाही से बचा ले। एक इबादत गुजार बाप अपनी बेटी की इज्जत की मुहाफजत के लिए, अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए सजदे में पेशानी रखकर अल्लाह से मुतालबा कर रहा है। उधर शाम होते ही दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। बाप सजदे से सर उठाया, दरवाजा खोलता है, देखता क्या है, सुबह की भागी बेटी शाम दरवाजे पर खड़ी है। बाप बेटी को देखते खुश हुआ, कभी पेशानी चूम रहा है, कभी आंखों का बोसा ले रहा है और मुस्कुरा मुस्कुरा कर रो रो कर कहता है, बेटी कहां भाग गई थी, बेटी कहां चली गई थी, बेटी क्यों भाग गई थी, बेटी क्यों भाग गई थी? बेटी कहती है, अब्बा हुजूर, ईमानदारी से आप बताइए, जब से आपने मुझे पैदा फरमाया, जब से मैं होश संभाल कर आकिला बालिगा हुई, तब से आपकी इजाजत के बगैर मैं कभी घर के बाहर कदम रखी थी क्या? बाप कहता है, नहीं बेटी, तूने ऐसा कभी नहीं किया, मगर आज तूने क्यों ऐसा किया? बेटी जल्दी बता, कहां गई थी? बेटी कहती है हाथ पकड़ के, अब्बा हुजूर, मैं वहां गई थी जहां से आप घूमकर वापस आ रहे थे। अब्बा, मैं देख रही थी 4 दिन लगातार आप काम के लिए गए, काम न मिला, खाली झोली लेकर वापस आप घर आए। अब्बा, मैंने डिसाइड किया कि आप बार बार जाते रहेंगे, आपको थकान होगी, आप परेशान होंगे, कोई अक्लमंद आपको काम न देगा, क्योंकि आपके चेहरे पे झुर्रियां आ गए हैं, आपकी पेशानी पे आपके बाजू की ताकत कमजोर हो गई है, आप कमजोर हो गए हैं, आपकी कमजोरी की वजह से कोई अक्लमंद ड्यूटी आपको नहीं बांटेगा। अब्बा, मैं डिसाइड कर गई कि अब इस घर में रोटी का इंतजाम मुझे करना होगा। अब्बा, आप बेहोश पड़े थे, मैं आपका पेट भरना चाह रही थी। अब्बा, मैं मार्केट गई थी, नकाब पहन के, इरादा यह था मार्केट के सदर दरवाजे पे मैं खड़ी हो जाऊंगी, हजारों लोगों की गुजरगाह होगी, वहां पर मैं खड़ी रहूंगी, हजारों लोग आएंगे जाएंगे, उनको देखूंगी, वो मुझे देखेंगे, वो लोग उन लोगों में से चंद तो बदमाश किस्म के होंगे जो मेरे हुस्न को देखकर, मेरी जवानी को देखकर, मेरे चेहरे को देखकर, मेरे बदन को देखकर, मुझे देखकर मेरे करीब आएंगे। मैं अपने बदन के बदले 2-4 पैसा उससे लेकर उसी पैसे से रोटी खरीद कर अब्बा आपको खिलाकर मरने से बचा लूंगी। अब्बा, मैं जिसमें का सौदा करने मार्केट गई थी, एक गैरतमंद बाप, एक नमाजी बाप, एक साइमुत्तहर बाप जब सुनता है कि उसकी बेटी इज्जत का सौदा कर ले, मार्केट के सदर दरवाजे पर दिन भर खड़ी थी, अब वो बाप की गैरत पुकार उठी। बाप कहता है, बेटी जल्दी जल्दी बता, कितने लौंडों ने तुझे इस्तेमाल किया, किन किन लोगों ने तुझे अपने लिए इस्तेमाल किया, किन लोगों ने तुझे टच किया, बेटी जल्दी से बता। बेटी कहती है, अब्बा हुजूर, कसम से मैं गलत इरादे से घर से बाहर जरूर गई थी, मगर सुबह से शाम तक मार्केट के जिस दरवाजे पर मैं खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। अब्बा, शाम को नाकाम मैं घर लौटी हूं, कोई मुझे क्या इस्तेमाल करता, कोई मेरा बदन क्या टच करता। अब्बा, किसी ने भी मेरी तरफ गलत निगाह तक उठाकर नहीं देखा। बाप कहता है, ए मेरी बेटी, कैसे तेरी तरफ कोई गलत निगाह उठाएगा, जबकि मैं तेरा बूढ़ा बाप आज तक किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। यानी एक बाप, एक बूढ़ा बाप, एक गार्जियन बाप जब खुद ही दूसरों की बेटी की इज्जत करेगा, जाहिर है उसकी बेटी की इज्जत की मुहाफजत पर्दे से अल्लाह फरमाएगा। एक भाई ट्यूशन पढ़ते वक्त
دوسروں کی بہن کی عزت کرے گا، وہ جان جائے وہ اگر مبارک پور کے کسی ٹیوٹر کے پاس ٹیوشن پڑھ کے دوسروں کی بچوں کی قدر کر رہا ہے، نگاہوں سے اپنی نگاہیں نیچی کر کے جاتا ہے، وہ بھائی دعوے سے کہہ سکتا ہے اس کی بہن بھی کبھی غلط نہیں کر سکتی۔ ایک باپ باہر کمانے گیا ہے، وہاں اگر وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، وہ باپ دعوے سے کہہ سکتا ہے اس کی بیٹی، اس کی بچی، اس کی بہن مبارک پور میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ لیکن جب ہم خود ہی بدنگاہی پہ اتر جائیں گے، ظاہر ہے ہمارے بعد والے لوگ اس کو طرز زندگی میں اپنائیں گے اور وہ نمونہ سمجھیں گے، وہ بھی اسی طرح وہ زندگی گزارنے لگیں گے۔ اس لیے بہتر سماج کا بہتر فیصلہ اور ڈیسائیڈ یہ ہے کہ ہم سب سے بہتر سماج کے لڑکے ہیں، شہزادے ہیں، ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پکے مسلمان ہو گئے۔ علماء کرام ہمیشہ بیان کرتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ الصمد۔ ہم مسلمانوں نے صرف کلمے کو ایمان سمجھ بیٹھا، مگر میرے مصطفیٰ ایمان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ہم کو آپ کو سمجھاتے ہیں، اے مسلمانوں دیکھو الایمان بضع وسبعون شعبہ، there are several parts of belief۔ ایمان کے بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے پارٹس ہیں، صرف کلمہ ایمان نہیں۔ ایمان کی پہلی سیڑھی ضرور ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ آپ چھت پہ چڑھنا چاہتے ہیں، چھت پہ چڑھنے کے لیے صرف سیڑھی کے ایک پائیدان پہ پاؤں رکھنا ضروری اور کافی نہیں ہے، بلکہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یعنی جتنی اونچائی کو آپ چڑھنا چاہیں گے اتنی مضبوط سیڑھی اور اتنے کوانٹیٹی میں اتنے پائیدان پہ آپ کو پاؤں رکھنا ہوگا، اسٹیپ سے پہ پاؤں رکھنے ہوں گے، تب جا کر آپ بلندی کو چڑھیں گے۔ بس یہی مثال ایمان کی مثال ہے۔ ایک آدمی اگر مسلمان بننا چاہتا ہے، کلمہ پڑھا تو گویا وہ پکا مسلمان ابھی ہوا نہیں ہے، بلکہ مسلمان بننے جا رہا ہے، پروسیس میں ہے، ابھی وہ اس ایمان کی پہلی سیڑھی پہ اپنا قدم رکھا ہی ہے۔ اب وہ اگر مکمل مسلمان بننا چاہتا ہے، نبی فرماتے ہیں اماطۃ الاذى عن الطریق، to remove any disturbing item from the way, it is also the symbol of belief۔ کسی بھی تکلیف سے چیز کو راستے سے ہٹانا بھی مومنوں کی پہچان ہے۔ اللہ سبحانہ۔ مومنوں کی پہچان صرف نماز پڑھنا، اذان دینا، روزہ رکھنا مصطفیٰ نہیں فرمائے ہے۔ مومنوں کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ جس سماج میں رہے وہاں سماج میں گندگی نہ ہو، وہ جس راستے سے گزرے وہاں کانٹے نہ ہو، وہ جس راستے کو اختیار چلنے کے لیے کرے وہ بالکل اسموتھ اور ہموار راستہ بن جائے۔ یہ ہمارا اسلام اور ایمان کہتا ہے، مگر ہم نے بالکل الگ اپنی زندگی بنائی ہے۔ آج ہر آدمی سب سے زیادہ اپنے سماج کے اپنے دوسرے بھائیوں سے پریشان ہے۔ ایک بھائی کی خواہش ہے کہ میں جب تک اپنے بھائی کو پردھان کے دروازے کی دھول اور مٹی نہ چٹوا دوں تب تک میرے دل میں جو آگ لگ رہی ہے وہ آگ بجھے گی نہیں۔ جب تک تھانے نہ بھجوا دوں، جب تک جیل نہ بھجوا دوں، تب تک ایک بھائی کی خواہش پوری ہی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ہم ایسے سماج کے نمائندہ تھے جہاں پہ ہم سے دوسرے لوگ سیکھتے، مگر آج ہمارا بھائی ہم سے پریشان ہے، ہم اپنے بھائی سے پریشان ہے۔ ایسا ماحول اور سماج ہم بنا کر بولتے ہیں کہ اللہ ہم کو کیوں نہیں بچاتا ہے؟ نہیں بچائے گا میرا رب۔ وہ اور زمانہ تھا وہ جب ہمارے عمل اچھے تھے تو اللہ کی عنایتیں رحمتیں ہمارے اوپر آتی تھی، مگر ہم اپنے عمل کو اتنا خراب کر لیے ہیں کہ کافروں کو بھی ہم کو مسلمان کہنے میں شرم آتی ہے۔ مسلمانوں، ہماری پہچان یہ نہیں کہ ہم جس سماج میں رہے ہمارا بھائی ہم سے دکھی رہے۔ ایک یہودی بادشاہ راستے سے گزر رہا ہے، رات کے اندھیرے میں پتھر سے چوٹ لگتی ہے، خون کے فوارے گرے، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ بہت دیر کے بعد ان کے ساتھیوں نے، ان کے عقیدت مندوں نے کہا کہ حضور آپ اس علاقے کے بادشاہ ہیں، آپ کو پتا ہے کون سا راستہ اسموتھ ہے، ہموار ہے، سیدھا ہے، اچھا ہے، پھر بھی آپ یہاں کا راجا، یہاں کے بادشاہ ہونے کے باوجود یہ کیا کٹیلے راستے کو اختیار کے چلنے کے لیے؟ بادشاہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے یہ راستہ میں اس لیے چلنے کو اختیار کیا کہ میں جانتا ہوں کہ راستہ مسلم سماج سے ہو کر گزرتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جو راستہ مسلم سماج سے ہو کے گزرے گا وہاں کانٹے نہیں ہوں گے، وہاں پتھر نہیں ہوں گے۔ وہ رب یہودی کہتا ہے کہ میں اس لیے چلا، میں جانتا ہوں کہ مسلمان راستے کو صاف رکھتے ہیں، آج صبح سے لگتا ہے اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے۔ اگر ایک بھی مسلمان ادھر سے گئے ہوتے تو ایک پتھر جس سے مجھے چوٹ لگی ہے یہ پتھر اس راستے میں نہیں ہوتا۔ ایک یہودی کا ایقان و اعتماد ہمارے اوپر ہمارے لیے اتنا مضبوط تھا کہ مسلم لوگ اپنے سماج کو بالکل صاف و ستھرا رکھتے ہیں، وہاں کوئی جھنجھٹ اور پریشانی نہیں رہتی، مگر ہم نے آج کیسا ماحول اور سماج بنایا ہے۔ کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر ہیں، ان کا وقت میں نے لیا، یہ محبتیں ہیں ہمارے استاد محترم اللہ
अल्लामा हुसैन मुस्तफ़ा साहब मिसबाही की कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को अपने शागिर्द को इस काबिल समझा, फ़ोन किया, मैं ग़ुलामी में दौड़ा आ गया। मुबारकपुर मेरे लिए बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, बड़ा अच्छा माहौल मैंने यहाँ पाया है। जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मैं इरादा किया हूँ, क़स्द किया हूँ और बिल्कुल इस पर काम कर रहा हूँ कि मैं मुबारकपुर का मिशन, हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत का मिशन, मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। 10 साल फरागत के हो गए मगर आज तक एक दिन के लिए भी मैं कहीं मैं रुका नहीं, हमेशा पढ़ता रहा, तबलीग करता रहा, दौड़ता रहा। मुबारकपुर के पैगामात को दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुँचाना हर मिसबाहियों का काम है। इंशाअल्लाह मिसबाही हजरात कर रहे हैं और आप बड़े मुबारकबाद के काबिल हैं कि आपकी मेहनत का, आपकी कोशिशों का फल आज पूरी दुनिया में बट रहा है। इसका अज्र, बेहतर अज्र अल्लाह आपको देगा। उन्हीं तमाम अशरफिया के खुद्दाम में से, खादिमों में से एक बड़ा नाम अलहाज अब्दुल सत्तार साहब का है। उन्होंने हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत के साथ खड़े रहकर अशरफिया के लिए बड़ा काम किया है। इन्हीं कामों में से अल्लाह ने अगर एक काम कबूल फरमा लिया तो मैं दावे से कह सकता हूँ जन्नत उनके लिए, आखिरत उनके लिए है। अस्सलामु अलैकुम।